वीडियो ऑफ करके तो आराम रेडी से। हूँ हालत में वीडियो दी हमने सजा किए गए इंटरेक्शन मुझे लगा तो कौन कराई ना मतलब एजेंसी ओके, अभी यमुना आपकी वीडियो ऑन है, सो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Sure. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम यमुना है और मैं जो हूँ एक अमेरिकन ऑफिस के साथ काम करती हूँ इन ऑपरेशंस. Okay, great. And what is inspiring you to be here today? I think मैं जो हमेशा से like I'm very interested in psychology. I have taken courses on CBT and as well as I am very interested in different ways of managing, anxiety, stress in daily life to life. I think I'm very passionate about that. ओके, दैट्स ग्रेट। और कितना हेल्पफुल रहा है वो सारी कोर्सेज लेना या ट्रेनिंग्स लेना? I mean, I'm no professional. मेरे पास कोई like degree नहीं है, but there are a few exercises that do help. That box breathing method and everything. It does help. ओके, ग्रेट। इट डज। थैंक यू सो मच। और बाकी इस टाइम कोई भी नहीं है जो कि वीडियो ऑन करके बैठा हो? सो सब लोग ऑनलाइन आके तो ओके, आमना इज हियर। हेलो आमना, हाउ आर यू? Amna, am I audible? Is also not there. आयशा, अगर ये सब आपके टीम मेंबर्स हैं, प्लीज आस्क देम टू टर्न ऑन देयर वीडियोस। और इस तरह मैं कैसे ट्रेनिंग स्टार्ट करवाऊँ? सबने वीडियोस ऑफ की हुई हैं। ओके आमना। हेलो महनाज, हाउ आर यू? Alhamdulillah, fine, ma'am. What about you? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yes, ma'am. Myself, Manaz Nani. I am from district Sangar, Pakistan, and currently I working in a research assistant in Mehran University of Engineering Technology, Jamshoro, and my master's degree in energy and environment. Thank you. And that's great, good to have you. What is your inspiration to attend this workshop? मैम बेसिकली जो है ना मैं मतलब ये बोलना चाहूंगी कि मुझे ज्यादा नहीं पता इन चीजों का मगर जो है मेंटली बहुत चीजें हैं जो मुझे डिस्टर्ब करती है लाइक मुझे ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं। मैं लोगों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पाती इवन अपने जो घर फैमिली मेंबर्स होते हैं उन पे भी। और सेकंड इज दैट कि मेरी जो एक आदत है कि मेरे साथ कुछ भी कोई भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती और जो है ना मुझे अंदर से जो डिप्रेस करती है। तो फिर मतलब इस हिसाब से मुझे मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे कैरियर काउंसलिंग के कुछ क्लासेस लेने चाहिए ताकि मेरे लिए हेल्पफुल रहे। Okay, thank you for sharing. And Taha Malik. Assalamualaikum, ma'am. Walaikum salam. You can call me Natalia. No, ma'am. Okay, ma'am. Okay, Hindu Sarjan. Thank you. Please introduce yourself. My name is Taha Malik. I am from Nankana, South. I am currently studying human nutrition and dietetics at Punjab University, Lahore. And currently, I'm in my third year, and I hope to learn a lot of things from you. Looking forward to a great session. Thank you. Yeah.
So what is your inspiration to be in the session? I just want to build up resistance against many things which we others, a lot of others nowadays face, which is stress, and most of the time coma, which they don't know they are suffering from, but most of the time they are suffering from. Most of the time, in universities, as I'm a hostile, many students are suffering from homesickness. They don't, and they suffer for a long time, not for a day or two. And I think Mm-hmm. that's something I will like to learn. Okay, that's great. Thank you for sharing. And Aruj is here. Hello, Aruj. Aruj, am I audible to you? ओके, बाकी सब में जो लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना इंट्रोडक्शन जो है वो शेयर कर सकते हैं। एंड आमना कह रही हैं कि वो 5 मिनट्स में अपनी वीडियो ऑन कर देंगी। ओके, सो 3:15 तक विल वेट कि आपकी वीडियोस ऑन हो जाए, उसके बाद जिनकी वीडियोस ऑन नहीं होंगी उनको हम यहाँ से सेशन से रिमूव कर देंगे। And now Naveed is here. Hello Naveed, can you please introduce yourself? Yes, ma'am. I am Naveed Ahmed Sajid. Mm-hmm. I am a student of political science, now recently graduate. Mm-hmm. Or what is your inspiration to be here? मैम कैसे? आप इस वर्कशॉप में क्या सीखने के लिए आए हैं? मैम मैं मतलब मुख्तलिफ लोगों के तजुर्बात से सीखने के लिए, मतलब मुख्तलिफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ डाइवर्स लोग स्टूडेंट होते हैं, डिसिप्लिन के बंदे होते हैं, नौजवान होते हैं ना, उनसे सीखने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए। Okay, okay. Thank you so much for sharing. Thank you. Let me introduce myself now. Okay, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? पहले मैं चीजें थोड़ी सी सेट कर लूं। Okay, okay, great. So I am Natalia Islam, clinical psychologist, psychotherapist, trauma buster therapist, and personal development coach, certified from American Board of NLP and from Timeline Therapy Association एज अ टाइमलाइन थेरेपिस्ट। और मेरा 13 ईयर्स की स्टडी है साइकोलॉजी को लेके, बिकॉज इट वाज माय पैशन। तो बस वो स्टडी करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया, और 6 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, जो प्रैक्टिकली मैं क्लाइंट्स को डील करना, लोगों के साथ काम करना, वो सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और मैं क्लाइंट्स को हेल्प कैसे करती हूँ? मैं यूजुअली जो थेरेपी सेशंस होते हैं जिसमें काउंसलिंग और टॉक थेरेपी होती है, जस्ट कि आप रेंट करते हैं क्लाइंट्स और आप उनको काउंसिल करते हो, मैं उससे थोड़ा सा हट के काम करती हूँ। ऐसा क्यों मैं करती हूँ? बिकॉज काउंसलिंग मैंने बहुत टाइम तक की है, साइकोथेरेपी मैंने बहुत टाइम तक की है, सीबीटी को मैंने बहुत टाइम प्रैक्टिस किया है, स्टिल अभी भी मेरे सेशंस में वो ऐड होती हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैंने देखा था, इट टेक्स सो मच सेशंस टू क्रिएट अ रिजल्ट्स। लाइक अगर आप सीबीटी को प्रैक्टिस कर रहे हो और साइकोथेरेपी को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको मिनिमम 200 और 300 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं टू क्रिएट अ चेंज इन पर्सनैलिटी।
क्योंकि हमारी पर्सनैलिटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट नहीं हुई होती हैं, हमारे ब्रेन की पूरी प्रोग्रामिंग हुई होती है, पूरी प्रोसेसिंग हुई होती है। सो ये ऐसे जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ हुआ है हमारे ब्रेन में, और उसकी वजह से हमारे कुछ बिहेवियर्स बने होते हैं, उसी की वजह से हमारे कुछ पैटर्न्स बने होते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक पूरी पर्सनैलिटी शेप होती है। सो जब हम उस पे वर्क कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है उन पैटर्न्स को ब्रेक करना और न्यू पैटर्न्स को शेप देना, उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। लेकिन जब हम साइकोथेरेपी और सीबीटी को प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, 200 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, 300 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं टू क्रिएट दैट चेंज। और ये चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा ये सोचने पे मजबूर किया कि इतना टाइम भी नहीं किसी के पास होता, और फाइनेंशियली भी बहुत हेक्टिक हो जाता है जब भी क्लाइंट्स जो है वो इतने ज़्यादा सेशंस लेने की तरफ आएँ। और मैंने अपनी 3 इयर्स की प्रैक्टिस में देखा कि बहुत कम क्लाइंट्स हैं जो कि इतने लंबे थेरेपी सेशंस में आते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली जो है वो ये चीज़ सामने आती है कि साइकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं, थेरेपी वर्क नहीं करती है। हालांकि थेरेपी वर्क करती है, इट्स जस्ट कि आप कंप्लीट सेशंस नहीं लेते। लेकिन उनका रीज़न भी जेन्युइन है, और वहाँ से मैंने सर्च करना स्टार्ट किया और मैंने देखना स्टार्ट किया कि क्या चीज़ें हैं जो मैं मज़ीद लर्न कर सकती हूँ, जिससे मैं मज़ीद इफ़ेक्टिव तरीके से थेरेपी दे सकती हूँ, जो कि कम ड्यूरेशन में मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ, ठीक है। देन आई गो फॉर एनएलपी अंडर अमेरिकन बोर्ड, और देन आई गो फॉर टाइमलाइन थेरेपी एसोसिएशन के अंडर। और उसका मुझे बेनिफिट ये हुआ कि उसमें साइंटिफिक टूल्स हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो मैं अपने सेशंस में जब यूज़ करती हूँ, और वही रिजल्ट जो 200-300 सेशंस में क्रिएट करना होता है मेरी 3.5 साल की प्रैक्टिस में, जो कि मैंने ये सारे कोर्सेज करने के बाद की है। उसमें मैंने अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, मिनिमम सेशन 18 और मैक्सिमम अभी तक जो मेरे क्लाइंट्स के साथ सेशन रहे हैं वो 35 रहे हैं। सो वही जो रिजल्ट हमने 200-300 सेशंस में क्रिएट करना है, वही रिजल्ट अभी कितने सेशंस में क्रिएट हो रहा है, 18 to 35 सेशंस। सो ये अंडरस्टैंडिंग होती है, ये फायदा होता है जब आप ब्रेन वर्क कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। एनएलपी स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मतलब हमारे ब्रेन में जो प्रोग्रामिंग होती है वो किस लैंग्वेज के थ्रू होती है, वो जो वायरिंग होती है वो कैसे होती है। सो जब आप वो चीज समझ लेते हैं कि वो जो वायरिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, तो उसको रीवायर करना आपके लिए ईजी हो जाता है। एंड दिस वाज समथिंग जो मैंने समझा, और फिर मैं उसको जब मैं प्रैक्टिस में लेके, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया कि मैंने रिजल्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं और कितने कम टाइम में क्रिएट करने हैं। और जब कम टाइम में कर रहे हैं तो ज़्यादा लोग उसमें उससे बेनिफिट ले सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी ओवर थिंकिंग के बारे में, ठीक है, जो कि ब्रेन की प्रोसेसिंग को ही रिप्रेजेंट करता है। हम कैसा सोचते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ब्रेन में एक न्यूरल पाथवेज बनाते जाते हैं, और वो न्यूरल पाथवेज जब स्ट्रेंथन हो जाते हैं, हम कॉन्टिन्यूसली वैसे सोचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे जब मैं मैट्रिक में थी, या शायद जब मैं 8-9 क्लास में थी, उस टाइम मेरे दिमाग में एक सवाल आया था, वो ये कि सभी एक घर में रहते हुए, सभी एक जगह पे रहते हुए, एक ही तरह के इन्वायरमेंट में है, एक ही तरह की तरबियत में है, लेकिन हर इंसान की शख्सियत डिफरेंट कैसे होती है। जैसे हम सब आप सबके भी बहन भाई होंगे, सबकी शख्सियत डिफरेंट होती है, और वो क्यों होती है। सो ये क्वेश्चन ने ही मुझे इंस्पायर भी किया था टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट ह्यूमन बिहेवियर्स एंड ह्यूमन पर्सनैलिटीज। और ये क्वेश्चन का जवाब जब मैं ढूंढने के लिए निकली, तो आई रियलाइज कि हम एक ही सिचुएशन में हम कैसे परसीव करते हैं, मतलब हम क्या सोचते हैं, वो डिफाइन करता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी बनेगी और हमारी फर्दर जो रियलिटीज हैं वो कैसी क्रिएट होंगी। और आज हम इसी चीज को अनफोल्ड करने वाले हैं कि जब हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं, और जब हम सोचते हैं तो हम कैसा सोचते हैं, तो कैसे रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं, और अगर हम अपने सोचने का अंदाज बदल लें तो हम अपनी लाइफ में कितना कंट्रोल जो है वो अपनी जिंदगी का अपने हाथ में ले सकते हैं। अभी जैसे हमारा जो माइंड है उसका कंट्रोल हमने किसको दिया हुआ है, जो मर्जी सोचते जाओ, ठीक है। सो आज से हम कॉन्शियस हो जाएंगे कि हम कैसे सोच रहे हैं और किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, ठीक है। उस चीज को उसको अभी मैं अनफोल्ड करती हूँ कि हमने किस डायरेक्शन में सोचना होता है, या हम ओवर थिंकिंग को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। आज की जो पूरी वर्कशॉप है उसमें हम क्या लर्न करेंगे, सबसे पहले कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, ओवर थिंकिंग कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद है जो थॉट्स हैं, इसके दो ही एक्चुअल में पैटर्न्स होते हैं।
एक वो पैटर्न जो सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं और एक वो पैटर्न जो अनसक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। अब इसमें सक्सेस और अनसक्सेस की डेफिनेशन जो है वो आप सबकी अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग रिलेशनशिप के अच्छा होने को सक्सेस मानते हैं, कुछ लोग करियर में परस्यू करने को सक्सेस मानते हैं, कुछ लोग पर्सनल डेवलपमेंट को सक्सेस मानते हैं। आप किसी भी कैटेगरी को उठा लें, आप किसी भी कैटेगरी में चले जाएं, जो सक्सेसफुल लोगों का थॉट पैटर्न है वो एक ही होगा। मतलब अगर मैं रिलेशनशिप को बिल्ड करने में सक्सेसफुल हूँ तो जो थॉट पैटर्न मैं उस टाइम यूज करती हूँ जिसकी वजह से ये सक्सेस क्रिएट हुई है, सेम थॉट पैटर्न वो दूसरा इंसान यूज कर रहा होगा जो कि अपने करियर में सक्सेसफुल है। सो और जितने भी लोग कंप्लेनिंग कर रहे होते हैं और अनसक्सेसफुल होते हैं अपने करियर को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को लेके या किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को लेके, अगर हम उनकी थॉट पैटर्न्स को अनफोल्ड करना स्टार्ट करें तो आप देखेंगे कि वो एक ही डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं। सो एक्चुअल में अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंसान सोचते हैं वो या तो एक डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं या फिर दूसरे डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं। सो एक्चुअल दो डायरेक्शंस ही हैं। और अगर हमें बीइंग अ ह्यूमन ये पता चल जाए कि वो डायरेक्शंस क्या क्या हैं, तो आपको क्या लगता है सबको कि वो इजी हो जाएगा हमारे लिए उसको फॉलो करना और चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लेना या फिर मुश्किल हो जाएगा? यू कैन यूज चैट बॉक्स टू रिस्पॉन्ड टू माई क्वेश्चंस। लाइक आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आपको दोनों थॉट पैटर्न्स पता चल जाए, हाउ डज दैट इम्पैक्ट योर लाइफ? So no one is listening? या आपको लगता है कि it is not helpful? Okay, so For me, can I answer? yeah, sure. I think it depends. I think just the sake of knowing, I think it's not enough. There has to be practice. Like for example, मुझे पता है सुबह उठ के the first thing I do is like what searching on social media and just scrolling is not good, but it has become a habit. So I know it's bad, but I think the motivation you need to practice, I think that's very crucial. Yeah, that's good. Practice is first thing जो कि हमने करनी होती है, लेकिन नॉलेज उससे पहले आता है। अगर नॉलेज होगा तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। अब प्रैक्टिस करने से आपको क्या चीज रोकती है वो हम आगे अभी देखते हैं, ठीक है? ओके, मैं जरा सबके रिस्पॉन्स देख लूं। थैंक यू सो मच यमुना फॉर पार्टिसिपेटिंग। तोहा कह रहे हैं इट विल बी इजी टू कोप विद देम, ग्रेट, इट कैन बी हेल्पफुल बट नोइंग एंड प्रैक्टिसिंग आर वेरी डिफरेंट। ओके, सो ये यमुना ने ही बोला है। Okay, we can get a control of our lives and we can give instructions to brain. That's great. Easier, very easy. It will be easy. At the same time, it is difficult as well. Okay, so yeah, जब भी हम कोई न्यू पैटर्न डेवलप करने लगते हैं, जब भी हम कोई न्यू चीज सीखते हैं तो एट फर्स्ट वो हमें मुश्किल लगती है, बट वी नीड टू डिसाइड कि क्या ज्यादा मुश्किल है, ओवर थिंकिंग करते रहना या फिर अपनी मर्जी से अपनी थॉट्स को डायरेक्शन देना। अब दोनों ही मुश्किल है, लेकिन हमने कौन सी मुश्किल चूज करनी है जो हमें फर्दर फायदा दे सकती है, वो डिसाइड करती है कि हमारी लाइफ फर्दर कैसे होगी। जैसे अभी यमुना ने कहा है कि उनको पता है कि सुबह उठ के उनका जब अगर वो सोशल मीडिया यूज करती हैं तो उनका दिन डिफरेंट होता है। जिस दिन आपको लगेगा ना कि ये वाला दिन मुझे नहीं चाहिए जो मैं डेली गुजार रही हूँ, उसके नेक्स्ट डे आप ये कर लेंगे। जिस दिन वो पेन इतनी बढ़ जाएगी कि ये वाली लाइफस्टाइल मुझे नहीं चाहिए जो मैं अभी गुजार रही हूँ, मुझे सुबह उठना है और मुझे फ्रेश रहना है, और उसके लिए क्या जरूरी है, मैं एटलीस्ट हाफ आवर तक मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करूँ। तो जिस दिन वो पेन इतना बढ़ जाएगा कि मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, उससे नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि आपकी हैबिट चेंज हो जाएगी। सो आप सब रेडी हैं टू गो फर्दर, टू अनफोल्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड टू लर्न मोर? आर यू रेडी? Okay, that's great. Thank you for responding. मुझे लग रहा था मैं अकेली बोल रही हूँ। Okay, so there are two ways to see the life. एक चीज होती है कि you take responsibility of your life, कि आपको अपनी जिंदगी में जो भी चाहिए you are responsible to create. और दूसरा एक पैटर्न होता है कि हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, एनवायरनमेंट को ब्लेम करते रहते हैं और हम अपना कंट्रोल नहीं लेते हैं।
So it's your responsibility if you want to create something in your life, if you want a particular life. अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको अपने ब्रेन पे कंट्रोल चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि मेरे पास ये नॉलेज है, इसको प्रैक्टिस किसने करना है, मैंने करना है. इज देयर एनी जादू जो कि ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करवा देगा? नहीं. बट वो जादू एक है, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. जिस दिन हम ये डिसाइड कर लेते हैं वी नीड टू क्रिएट आवर लाइफ, हमें अपने इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट नहीं बनना, वी ऑल आर प्रोडक्ट्स एक्चुअल में. जो हमारा इनपुट आ रहा होता है इन्वायरमेंट से, हमारी जो हमारी तरबियत हुई होती है वो भी इनपुट फॉर्म में होती है, उसी की बेस पे हम आउटपुट दे रहे होते हैं. सो जिस तरह से एक सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर वर्क करता है ना, कि जो उसमें डाल दिया वही बाहर निकल रहा है, ह्यूमन का भी वही होता है. सिर्फ डिफरेंस ये आता है कि हमारी प्रोसेसिंग हमारी पर्सनल चॉइसेस पे डिपेंड कर रही होती है. इवन अगर सुबह उठ के मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे आज वो चीजें करनी है जो मुझे पसंद है, तो वो भी एक चॉइस है कि मैं वो चॉइस नहीं ले रही हूँ जो मेरी लाइफ को बेटर बना सकती है. तो एक्चुअल में ये भी एक चॉइस है. तो अगर हम इस लेंस से लाइफ को देखना लग जाएं कि हम जो कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे, वो दोनों हमारी चॉइसेस हैं. हम जो करते हैं वो भी चॉइस है, और जो नहीं करते हैं वो ना करना भी हमारी ही चॉइस होती है. तो अगर हम इस नजरिए से देखना शुरू करें अपनी लाइफ को, तो आवर लाइफ विल बिकम ईजियर एंड ईजियर. ईजी कैसे होगा? क्योंकि जब चीजें हमारे कंट्रोल में आ रही हैं, हर इंसान को कंट्रोल करना पसंद है, हर इंसान को. ये ह्यूमंस में इनबिल्ट है. प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? हम किस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. हम मोस्टली उन चीजों को कंट्रोल करने लग जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं. सो हमें एक्चुअल में सबसे पहले क्या कंट्रोल करना है? our responsibility. We need to understand कि this life is our responsibility. हम जो चाहते हैं, हमारा इनर सेल्फ जो हमें कहता है कि हमें ये होना चाहिए, लाइक जैसे आपको पीस चाहिए, हमारे अंदर सब कैपेबिलिटीज हैं, हमें एग्जैक्टली पता होता है कि वो पीस कैसे मिलेगा. इट्स जस्ट कि हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि हमें लग रहा होता है कि कोई आके हमें करवा दे, हम कहीं से सीख जाएं, हम कुछ ऐसा हो जाए कि ऑटोमेटिकली इजी तरीके से चीजें हो जाएं. ठीक है. सो वरना हमें अंदर सब पता होता है कि हमें करना कैसे है. तो उसमें यह है कि जब हमें पता है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू इट. और अगर नहीं हो रहा, देन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो फॉर थेरेपी एंड टेक प्रोफेशनल हेल्प. वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको पता चल रहा है क्योंकि आपसे खुद नहीं हो रहा, यू वांट अ इजियर पाथवे, बिकॉज थेरेपी सिर्फ एक पाथवे को इजी करती है. जैसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं, दे नो द सॉल्यूशंस, इट्स जस्ट उनसे हो नहीं रहा क्योंकि उनकी ब्रेन की वायरिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो वायरिंग ब्रेक करके न्यू वायरिंग उनसे नहीं जनरेट हो रही, विच इज ऑल्सो फाइन. मुझे भी अगर कभी कि कुछ डीपर लेवल पे काम करना हो, मुझे भी थेरेपिस्ट के पास ही जाना पड़ता है, बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन हम अपनी एक स्ट्रांग वायरिंग को ब्रेक करके एक न्यू वायरिंग नहीं क्रिएट कर पाते. ठीक है. सो बट जब आपको ये पता चल रहा है कि आपसे खुद नहीं हो पा रहा, सो थेरेपिस्ट के पास जाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वहां पे फिर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यहाँ तक थी कि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई है. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो यहाँ पे बैठे हुए आप सब लोग अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए हैं कि आज जो आपने लर्न करना है, आज जो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, उसको आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लेके जाना है. ठीक है. नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट. अच्छा, अभी सब अपने अपने व्यूज शेयर करें. आपको क्या लगता है कि ओवर थिंकिंग क्या होती है? हाउ डू यू डिस्क्राइब इट? अगर कोई माइक ऑन करके बोलना चाहता है तो आप बोल सकते हैं. अगर कोई चैट में शेयर करना चाहता है तो आप कर सकते हैं. Ma'am, can you share something? Sure. Ma'am, I read somewhere a long time ago, a year or two, that you think about something when you see it. If you don't see it, you can't think about it. ये मुहावरा यूज हुआ था कि आप आंख हो जाए पहाड़ हो जाए, उसके बाद किसी चीज को देखते नहीं हो तो आप उसके बारे में सोचते भी नहीं हो. कि अगर आपने किसी चीज को भूलना है और आप
जैसे आप दिखना चाहते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जो आप देखते हो तो वो आपके अंदर इमोशंस ट्रिगर कर देते हैं, आप नहीं चाह रहे तब भी। तो आई थिंक ओवरथिंकिंग इज व्हाट यू फील। या ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हम अपना देखना कितनी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं? Ma'am, when you think that I want to choose this particular thing, you should avoid it at any cost. आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन आ गई है, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला। कैन यू रिपीट प्लीज? Ma'am, I said when you want to change something, so you should pick a particular thing that you want to change this particular thing, then you can avoid it at any cost. Yeah, that's true. It's all about focus. You can't change everything at the same time. You should pick one thing at a time and change slowly. Okay, so it's more about focus because आप अपना देखना उतना कंट्रोल नहीं कर सकते। किस तरह? जैसे अभी यहाँ मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, लैपटॉप के साथ काफी बुक्स पड़ी हुई हैं, नोट्स पड़े हुए हैं मेरे राइट साइड पे, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे पानी की बोतल है, कुछ और चीजें पड़ी हुई हैं। सो मेरे टेबल पे अभी मल्टीपल चीजें पड़ी हुई हैं, तो मुझे सब दिख रही हैं। अगर मैं अपनी पूरी आईज विजन जो है उसको मैं यूटिलाइज करूं तो मुझे सभी दिख रहा है, लेकिन मेरा फोकस किसी भी चीज पे भी नहीं है एक्सेप्ट लैपटॉप। तो यहाँ पे जो मैं लैपटॉप को देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरी थॉट्स की प्रोसेसिंग हो रही है। और लेट सपोज अभी मैं अपनी आईज इस तरफ करती हूँ और ये सामने अगर वो के सामने कोई चीज पड़ी है तो वो ना चाहते हुए देखेगा तो ट्रिगर होगा। आई एम सेइंग दैट कि अगर उसके सामने वो चीज ना पड़ी हो, अगर जरूरत नहीं है तो आप अवॉइड करना चाह रहे हो तो आपके सामने भी नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर आप किसी बिहेवियर को बदलना चाह रहे हैं, आप इस तरह की गैदरिंग को अवॉइड करो। अगर आप चाहते हो कि आप इस बारे में ओवर थिंक ना करो, फॉर एग्जांपल फॉर अ पर्सन यू शुड अवॉइड देम, यू शुड अवॉइड देयर पिक्चर्स, यू शुड अवॉइड देयर you should delete their phone call, phone number, you should avoid the gatherings they are attending. But I was saying that you should not think. It is not about focusing. It's about when you see, you get the idea on your own. Your brain starts working on your own. Focusing is some, but it has some impact as well. But the point I'm showing right now is that when you see that thing intentionally or unintentionally, it affects you. या दैट्स ट्रू। अगर कोई आप एक पर्टिकुलर चीज आपको ओवर थिंकिंग की तरफ लेके आ रही है तो डेफिनेटली आप वो पर्टिकुलर, जैसे कोई इंसान है, अभी जो आपने एग्जांपल दी है, कोई इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका भी रिश्ता खराब हो गया या रिश्ता खत्म हो गया, एंड इफ दैट इज पॉसिबल कि आप उसकी पिक्चर्स नहीं देखें, आपका फोन, उसका फोन जो है वो डिलीट कर दें, डू इट। एज आई टोल्ड यू, यू नो योर सोल्यूशंस, लेकिन हर सोल्यूशन हर इंसान के लिए नहीं होता। वी नीड टू सी इन मल्टीपल डायमेंशन। आपके लिए अगर ये सोल्यूशन है और वो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई हो रहा है, अभी लेट सपोज अगर आपकी ओवर थिंकिंग ट्रिगर करी आपके अपने फैमिली मेंबर्स को लेके, जिनको ना तो आप रिमूव कर सकते हैं रियलिटी से, ना आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, देन आप क्या करेंगे? फिर उनको तो डिलीट नहीं किया जा सकता ना। सो ये वाली चीज डेफिनेटली वर्क करती है, बट एक पर्टिकुलर सिनेरियो में वर्क करती है, दूसरे में वर्क नहीं करती है। सो दूसरे सिनेरियो में क्या वर्क करता है, वी नीड टू सी दैट एज वेल, ठीक है। बट थैंक यू फॉर शेयरिंग ताहा। मैं 1 मिनट में जरा मैसेजेस रीड कर लूँ, सबने ओवर थिंकिंग के बारे में क्या बोला हुआ है। वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली। किसकी वॉइस क्लियर नहीं है समीना, मेरी या तोहा की क्लियर नहीं थी? ओके, यमुना कह रही है थिंकिंग अबाउट द पास्ट और फ्यूचर फॉर एन अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, दिस इज ओवर थिंकिंग। ग्रेट। ओवर थिंकिंग इज थिंकिंग बियॉन्ड इट्स लिमिटेशंस। वो चीज़ें जो नहीं भी होती वो भी सोचना, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं, एनर्जी ड्रिफ्ट्स। ग्रेट। और किशोर कह रही हैं जस्ट थिंकिंग विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। ओके, थिंकिंग टू मच अबाउट वन थिंग अगेन एंड अगेन अंटिल इट मेक्स यू फील वरीड और ट्राइड, repeating thoughts, worrying. Okay, thank you so much for sharing, all of you. I can't help myself from overthinking. Okay, दिल मोहम्मद। Okay, इस सेशन के बाद इंशाल्लाह आपकी ओवरथिंकिंग जो है वो बेटर हो जाएगी। सो सबने अपनी ओवरथिंकिंग के बारे में मुझे मेरे साथ व्यूज शेयर किए हैं, विच इज राइट,
कि ओवरथिंकिंग क्या होती है, जब आप एक चीज को बार बार सोच रहे हैं, आप एक लूप क्रिएट कर लेते हैं। जैसे किसी ने मेंशन किया हुआ है पास्ट के बारे में सोचना, फ्यूचर, आई थिंक यमुना ने लिखा हुआ था पास्ट के बारे में सोचना या फ्यूचर के बारे में सोचते रहना। सो दिस इज समथिंग जो कि एक लूप क्रिएट कर देता है और आप उस लूप से निकल नहीं पाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो अभी राइट नाउ प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, अगेन वो भी पास्ट या फ्यूचर के डायमेंशन में चला जाता है। अभी जैसे यहाँ बैठे हैं हम और हम बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट है, इसके अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा हम किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे तो वो या तो पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा, और जो चीज अनक्लियर है, जो चीज यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसके बारे में हम जब भी सोचते हैं तो वो एक लूप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है और फिर उस लूप को हम कवर नहीं कर पाते हैं। सो जिसको हम ओवर थिंकिंग का नाम देते थे। ओके, सो 0 से 10 के स्केल पे अगर मैं आप सबसे पूछूं आप कितना ओवरथिंक करते हैं, तो आप 0 से 10 के स्केल पे कितना रेट करेंगे खुद को इन टर्म्स ऑफ ओवरथिंकिंग? 10 10 10 6 6 7 7 5 okay, great. Don't know who's 8 8 पहले बहुत था, अब बिल्कुल नहीं है। ओके, that's great. टेन 8, अच्छा ये किसने बोला है कि पहले बहुत था अभी बिल्कुल भी नहीं है? कैन यू प्लीज शेयर कि आपको किस चीज ने हेल्प किया कि आपने अपनी ओवरथिंकिंग से ओवरकम कर लिया? ये एसेंस स्टूडियो है, अब आई डोंट नो इनका नाम क्या है। ओके, जब तक ये टाइप करते हैं हम अपना जो है वो उसको कंटिन्यू करते हैं। आई होप शी और ही शेयर। ओके, सो जैसे सब लोगों ने मेंशन किया है 0 से 10 के स्केल पे मोस्टली लोग जो है 5 to 10 के दरम्यान में फॉल कर रहे हैं, जहां पे वो ओवरथिंकिंग को एक्सपीरियंस करते हैं। आप सबको क्या लगता है, इज ओवरथिंकिंग इज अ बैड थिंग? नो, Yumna said no, Taha Malik no. Then how is it a problem? Yes, most of the time. माँ हम कह रही हैं कि most of the time. Well, ये सब अल्लाह से दुआएं मांग कर और बहुत सी एक्सपीरियंसेस करके कुछ नहीं मिलता, जस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज what you can't change something. Oh, that's great. This is the main formula, acceptance. We'll discuss it later. Okay, the thing is when we think about regrets, past, worried about future, the loop starts. Dil Mohammed, great. Sometimes, but over is bad. When you don't take action, it becomes a problem. It's a problem. ओके, दैट्स ग्रेट। सो कुछ लोगों ने बोला है कि ओवरथिंकिंग जो है वो बुरा नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि समटाइम्स बुरी है, समटाइम्स अच्छी है, समटाइम्स जो है वो अगर एक्शन नहीं लेते हैं तब वो प्रॉब्लम बन जाता है। विच ऑल आर राइट आंसर्स। ओवरथिंकिंग इज नॉट अ बैड थिंग। खुद से अगर हम एक ओवरथिंकिंग को एक्सप्लेन करें, वो बुरी नहीं है। कैसे बुरी नहीं है? जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, लाइक जितने भी अपनी फील्ड में ओवर द टॉप लोग हैं, वो कैसे बने हैं? एक साइंटिस्ट है तो वो कैसे है? एक उन्हीं का क्लास फेलो साइंटिस्ट नहीं बन सका या उतना सक्सेसफुल नहीं हो सका, तो उसमें डिफरेंस कहाँ पे आएगा? बिकॉज ऑफ दैट ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, ज्यादा समझना। सो ओवर थिंकिंग ऑल्सो रिप्रेजेंट विजडम। इसी तरह से कोई टीचर है और कोई टीचिंग में बहुत ओवर द टॉप है, बहुत अच्छा टीचर है, वो अच्छा टीचर कैसे बना? उन कॉन्सेप्ट्स को समझ के, उनको ओवर थिंक करके, उनको सो ओवर थिंकिंग इज नॉट अ बैड थिंग। जितने भी लोग, इवन आप लोग सारे आज इस जगह पे मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ सोच के, समझ के, देन यहाँ पे और अपने अपने करियर में आप लोग जहां जहां पे मौजूद हैं, वहां पे अगर आप सोचना समझना छोड़ देंगे या अपनी थॉट पैटर्न्स को, अपने थॉट्स को रिजर्व कर लेंगे, अपने थॉट्स को प्रोसेस होने से रोक देंगे, जिसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग को रोक देना, तो इवेंचुअली आप लोग किसी भी जगह पे ओवर द टॉप नहीं जा सकेंगे, आप एवरेज रहेंगे। सो जितने भी लोग एवरेज से ऊपर जाते हैं वो वही लोग होते हैं जो ओवर थिंक करते हैं। सो ओवर थिंकिंग पर्टिकुलरली इज नॉट अ बैड थिंग। हाँ, क्या चीज मैटर करती है कि आप ओवर थिंक करते कैसे हैं, आप सोचते क्या हैं, आपकी थॉट्स की डायरेक्शन क्या होती है।
तो अभी हम ओवर थिंकिंग को एज अ प्रॉब्लम देखने की बजाय हम क्या देखेंगे कि ओवर थिंक हम कर रहे हैं क्योंकि थिंकिंग इज समथिंग जो कि ब्रेन की प्रोसेसिंग है, एक उसका फंक्शन है। अब मेरा हाथ है, इसका काम है मूव करना, ठीक है। इसको मैं अगर बांध के रख दूं कि नहीं इसको मूव नहीं करवाना, तो कुछ दिन के बाद इसके मसल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे और थोड़ा टाइम गुजरेगा तो इतना डैमेज होने लग जाएगा कि बाद में जब मैं इसको खोलूंगी तो ये मूव ही नहीं कर पाएगा। सो अगर हम हमारे ब्रेन का फंक्शन जो है वो थिंकिंग है, अगर हम थिंकिंग को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगी, हमारे ब्रेन को डैमेज करना स्टार्ट कर देगी, डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे ब्रेन का, और उसके बाद क्या होगा, वो डिफरेंट नेगेटिव इमोशंस को क्रिएट करना शुरू कर देगा। सो हमने थिंकिंग को स्टॉप करने की कोशिश कभी नहीं करनी है। हमने करना क्या है, अपने थॉट पैटर्न्स की डायरेक्शन को नोटिस करना स्टार्ट करना है कि वो डायरेक्शन किस साइड पे जाती है। अब अगर मैं ये सोच रही हूँ कि यमुना मेरे बारे में क्या सोच रही है, अगर मैं ये सोच रही हूँ तो क्या इसका कभी मुझे एक्यूरेट जवाब मिल सकता है? मेरे अपने माइंड में तो कभी नहीं मिलेगा। तो हम अपने माइंड को जब भी कंफ्यूजन देते हैं ना प्लेट में रख के कि ये लो ये टॉपिक है और इस पे कंफ्यूज होना शुरू हो जाओ, तो वहां से ओवर थिंकिंग जनरेट होती है। तो अगर मैं ये सोचना शुरू करती हूँ कि यमुना मेरे बारे में क्या सोच रही है, तो मैं क्या करूंगी, कोई एक स्टेटमेंट आएगी मेरे माइंड में, फिर मैं कहूंगी नहीं हो सकता है ऐसा नहीं ऐसा हो, अच्छा एक जगह पे उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे तो हो सकता है ऐसा नहीं ऐसा हो। तो मैं कॉन्टिन्यूसली अपनी ही स्टेटमेंट्स को निगेट कर रही हूँ, न्यू स्टेटमेंट्स बना रही हूँ। यहाँ पे हम लोग एक लूप में जाना शुरू हो जाते हैं और वहां पे भी प्रॉब्लम क्या आती है, इवेंचुअली मैं टायर्ड फील करना शुरू हो जाऊंगी, मेरी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से खाली यमुना को क्या, मैं सबको बारी बारी सोचना शुरू कर देती हूँ कि महनाज मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, बाकी पार्टिसिपेंट्स मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं सोचती जाऊंगी उसके बाद मेरी एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाएगी कि उसके बाद अगर मुझे नेक्स्ट किसी ट्रेनिंग में अपीयर होना होगा तो मैं पहले सोचना शुरू कर दूंगी कि नहीं लास्ट एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा था, मुझे नहीं जाना। वहां से हमारे एक्शंस भी हिंडर होना स्टार्ट होते हैं। आप लेट सपोज यहाँ पे मैं ये सोचने की बजाय कि यमुना मेरे बारे में क्या सोच रही है, अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं अपने काम के कि मैं कैसा प्रेजेंट कर पा रही हूँ, मैं कितना नॉलेज डिलीवर कर पा रही हूँ, क्या मैं वो कर पा रही हूँ जो मैं करने के लिए यहाँ बैठी थी। अब यहाँ पे मैं किस डायरेक्शन में सोच रही हूँ, अपने कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे तो मेरा कंट्रोल है। लेट सपोज मुझे एग्जैक्टली पता है मैंने क्या प्रिपेयर किया हुआ है, मुझे एग्जैक्टली पता है मैंने क्या डिलीवर करना है, और अगर मैं ये सोचती हूँ क्या मैं वो डिलीवर कर पा रही हूँ जो मैंने प्रिपेयर किया था, क्या मैं वो डिलीवर कर पा रही हूँ जिस पर्पस के लिए मैं यहाँ पे आई थी, मुझे येस और नो में जवाब मिल जाएगा। और अगर मुझे ये जवाब मिलता है येस में, तो आई विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं कर पा रही हूँ, और मेरी वो थॉट वहीं पे स्टॉप हो गई और मैंने आगे सोचना शुरू कर दिया, आगे कुछ सोचने के लिए मुझे टाइम मिल जाएगा। और अगर मेरे माइंड में ये आता है कि नहीं मैं वो नहीं डिलीवर कर पा रही हूँ, तो मेरे पास टाइम है टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं अभी क्या करूंगी, मैं फौरन से अपने आप को बेटर करना शुरू कर दूंगी ताकि मैं अपना पर्पस अचीव कर पाऊँ जिस पर्पस के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। सो जब हम अपनी थॉट्स की डायरेक्शन को हम लोग सही करना शुरू करते हैं और ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं और देन शिफ्ट करना शुरू करते हैं, तो हमारे पास ये पावर भी आ जाती है कि हम एम्पावर होना स्टार्ट हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं। जैसे मैंने बोला अभी अगर मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं वो नहीं डिलीवर कर पा रही जिस पर्पस के लिए मैं यहाँ मौजूद थी, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया ना टू इम्प्रूव राइट नाउ, ज्यादा फोकस करने का, ध्यान रखने का कि मैं वो क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो क्या होगा, इवेंचुअली मैं वो करना शुरू हो जाऊंगी एंड आई विल क्रिएट दैट इम्पैक्ट जिस इम्पैक्ट को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज कि ओवर थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, उसको एज अ प्रॉब्लम नहीं देखना, इट्स अ गुड थिंग। इट्स जस्ट कि आपने अपनी डायरेक्शन को नोटिस करना है कि आप किस डायरेक्शन में सोचते हैं और वो डायरेक्शन आपको फर्दर किस जगह पे लेके जाती है। सो अभी 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस होती हैं जिसको हम अभी देखने लगे हैं कि 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस हमारी क्या होती हैं। एक को हम लोग हेल्दी थॉट पैटर्न में करेंगे, उस कैटेगरी में डाल देंगे, और एक को हम अनहेल्दी थॉट पैटर्न की कैटेगरी में डाल देंगे। तो जब हम हेल्दी थॉट पैटर्न में होते हैं उस टाइम हम क्या कर रहे होते हैं, और जब हम अनहेल्दी थॉट पैटर्न में होते हैं उसको हम क्या कर रहे होते हैं। इसको अनफोल्ड करने से पहले ना आई हैव अ टास्क फॉर यू। आप सबके पास पेपर पेंसिल है? ओके, सो आपने अपने पेपर और पेंसिल पे एक कॉलम बनाना है। उस कॉलम में फर्स्ट ऊपर लिख दें व्हाट इज इन माय कंट्रोल, और सेकंड में लिख दें व्हाट इज नॉट इन माय कंट्रोल।
और उसके नीचे लिस्ट बनाना शुरू कर दें। और आई गिव यू 5 मिनट्स, इट्स 3:40, सो 3:45 तक मैं वेट करती हूँ और तब तक मैं मैसेजेस पढ़ लेती हूँ सबने क्या मैसेजेस किए हैं। सो आप सब लोग अपनी जो पेपर पेंसिल है उसके ऊपर एक कॉलम बना के व्हाट इज इन माय कंट्रोल एंड व्हाट इज नॉट इन माय कंट्रोल उसको आपने लिख लेना है। ओके, अगर किसी ने भी लिख लिया है तो वुड यू लाइक टू शेयर कि आपने क्या लिखा है? Ma'am, I would like to add something in the topic when you said if overthinking is a bad thing or not. नहीं, अभी हम लोग टास्क पे डिस्कस करेंगे इन चीजों को, बाकी डिस्कशन हम इसके बाद कर सकते हैं, ठीक है? वो टॉपिक अभी क्लोज होता है। सो अगर to my task. सॉरी, I'm going to relate that to my task. फर्स्ट टेल मी, आपने टास्क कर लिए? व्हाट इज इन योर कंट्रोल एंड व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल? What is not my control, the past things that I have already done. I can't change what has been done already. So it is not in my control, and the future hardships which are going to come. But what is in my control is that how I can cope with them, how I can take action, how I would not overthink over them, and take full use of my time, and that instead of overthinking. ओके, सो इसको अगर हम सम अप करें तो आपने क्या बोला है कि पास्ट में जो चीजें हुई हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सो पास्ट इज नॉट इन योर कंट्रोल। और क्या आपके कंट्रोल में नहीं? Future hardships that are coming in my way, but I can take action which is in my control. आपके कंट्रोल में क्या है? To cope with them, the action which I will take to cope with the future hardships, which is in my control. To not overthink over such situations is not in my control. Okay, okay. Thank you for And to sharing. make full use of my time. Okay, thank you for sharing, Toha. And Yamna, please you can share. और उस्मान शाह, इसके बाद आप जो है यमुना के बाद आप शेयर कीजिएगा। Like the things that are in my control is are my attitude, my behavior, my action, and my thought pattern. And the things that are not in my control is how other people are thinking about me or their attitude and behavior towards anything. Yeah, good. Great. आपने बहुत precisely लिखा। Thank you so much for sharing. And now Usman, you can share yours. Hello everyone. I hope you are doing well. Firstly, in my control, have some step. I have to some specific keys like my thoughts, my efforts, and my actions, and my habits, and my character, yeah, attitudes. It's my control. Okay, good. And what is not in your control?
उस्मान, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके मेहनाज, यू कैन शेयर। Yes, ma'am. Firstly, I write it's my emotion is not control in myself, and overthinking also, Sam. But I am not. I am very confused. What is my control? तो ये चीजें मुझे मतलब समझ में नहीं आ रही कि इसमें मतलब आप क्या पूछना चाह रही कि कौन सी चीजें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। लाइफ में क्या चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं? लाइफ में। अच्छा, तो लाइफ इसको में। पूरी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है कि लाइफ में क्या चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं और क्या हमारे कंट्रोल में नहीं होता। मैम I don't know. Not confirmed. Okay, I'll elaborate it. Thank you for sharing. And Thank you. Hoshank, you can share now. And please turn on your video. होशांग तो अभी रिस्पॉन्ड नहीं करे। ईमान, आप शेयर कर सकती हैं अपना। Assalamu alaikum everyone, I'm Iman, and the things that are in my control is my thoughts, my success and my grades. And other than that, the things that are not in my control are like people, what people think about me. That's it. Okay, great. Thank you for sharing. ओके सो अभी आपने सबने ये कॉलम बनाया हुआ है, व्हाट इज इन माय कंट्रोल एंड व्हाट इज नॉट इन माय कंट्रोल। I would like to share one more point. Yeah, sure, you can share. As we have already talked about past and present and future, I will not discuss that. We all are on the same page. What is in our control and beyond our control. And furthermore, I think my actions are in my control, and I am saying this as an overthinker. My actions are in my control, but actions and reactions of other people are beyond my control. I cannot control them. Great. Thank you for sharing. And yes, ma'am. You can call me Natalia. Okay. So अभी आप सब लोगों ने कॉलम बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं एक एक करके सबसे पूछने वाली हूँ और आपने उस कॉलम में एक लिस्ट बनानी है। जब हम उसको एक लिस्ट की फॉर्म में बना लेंगे तो हमारे लिए अपनी थॉट्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज इन आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में होता क्या है। सो फर्स्ट थिंग, आप लोग अभी चैट बॉक्स यूज करेंगे। चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे कि सबको क्या लगता है कि हमारा प्रेजेंट हमारे कंट्रोल में होता है या नहीं होता। होता है, यस ओके ग्रेट। इसको आपने व्हाट इज इन माय कंट्रोल के नीचे लिख लेना है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि हमारी थॉट्स हमारे कंट्रोल में होती हैं या नहीं। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो एक अलग बात है। क्या ये ओके किसी ने बोला नहीं होती हैं। सो जो कह रहे हैं कि नहीं होते, व्हाट डू दे थिंक कि उनके माइंड में थॉट्स हैं, तो वो किसके कंट्रोल में है। अमारा ने कहा है कि हमारी थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अरुज कह रही है थॉट्स आर आल्सो इन आवर कंट्रोल। ओके सो थॉट्स में एनवायरमेंटल फैक्टर सर्कमस्टांसेस अफेक्ट्स थॉट, वो अफेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन है तो वो किसके कंट्रोल में होता है। थॉट्स होती तो हमारे कंट्रोल में, हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे। इट्स समथिंग जिसको हम लर्न करेंगे, लेकिन एक्चुअल में इन रियलिटी फैक्ट बेस पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे कंट्रोल में होती हैं। सो हमारी थॉट्स को भी आपने माय थॉट्स को आपने लिख देना है व्हाट इज इन माय कंट्रोल के नीचे, ठीक है। अब पास्ट हमारे कंट्रोल में होता है, नो 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 नो। इज देयर एनीवन जिसको लगता है कि पास्ट हमारे कंट्रोल में होता है? नो। ओके दैट्स ग्रेट। हमारे कंट्रोल में होता है।
सो फायजा कह रही है कि पास्ट हमारे कंट्रोल में होता है। फायजा हयात, फायजा कैन यू प्लीज शेयर पास्ट हमारे कंट्रोल में कैसे होता है? नो ओके, बाकी सब ने नो बोला है। फायजा को अगर कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो वो आप डायरेक्टली पूछ लीजिएगा कि कैसे हमारे कंट्रोल में होता है। पास्ट को बुलाना, उससे सीखना कंट्रोल में होता है। सो अभी हम पर्टिकुलरली पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो पास्ट एक्चुअली हमारे कंट्रोल में नहीं होता। सो इसको आपने उस कैटेगरी में लिख देना जहां पे आपने ऊपर लिखा हुआ है कि व्हाट इज नॉट इन माय कंट्रोल। नाउ टेल मी, फ्यूचर हमारे कंट्रोल में होता है? Assalamu alaikum, ma'am. I would like to add a point. Sure. So yes, the past is not in our control. The events of the past are fixed, but how we perceive it is in our control. So even if something bad happens, we can take it positively and think about it like as in it is for our betterment. So we can think about that and try to change it according to how we perceive it. So this is वो जो परसीव कर रहे हैं आप, वो किस मोमेंट में कर रहे हैं? Is it in the past or present? In the present. How we are thinking about the past matters. So like, okay, stop. Is it in the present or past? In the present. तो फिर आपके कंट्रोल में क्या है, पास्ट या प्रेजेंट? प्रेजेंट कंट्रोल में, बट हाउ वी आर परसीविंग थिंग्स, वो जो है वो पास्ट में, वो परसेप्शन किस वक्त हो रही है? इन द प्रेजेंट। इन द प्रेजेंट। तो इवेंचुअली हम प्रेजेंट में है ना, चाहे हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, बट हम प्रेजेंट में करें। प्रेजेंट में क्या सोचना है, कैसे सोचना है, दिस इज समथिंग जो हमारे कंट्रोल में, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो पास्ट तो किसी डायरेक्शन में फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, राइट? Okay, so the future itself is not in our control. Our action today determine our future tomorrow. फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो डिड नॉट नो। द फ्यूचर्स हमारे हाथ में नहीं होता। थ्रू प्रेजेंट एक्शंस वी कैन कंट्रोल। सो बिलाल, थ्रू प्रेजेंट एक्शंस वी कैन कंट्रोल फ्यूचर। तो आप एक्शन किस वक्त ले रहे हैं? इन द प्रेजेंट। तो इवेंचुअली कंट्रोल आपका प्रेजेंट में है, फ्यूचर में कंट्रोल नहीं है। फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे जो आपने प्रेजेंट में एक्शन लिया हुआ है। तो अभी हम पर्टिकुलरली कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो आप फ्यूचर को कंट्रोल तो नहीं कर सकते। लेट्स सपोज के आज की ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। आपके कंट्रोल में क्या था? टाइम निकालना। मेरे कंट्रोल में क्या था? टाइम निकालना। और अगर अभी अभी पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो जाता जिसकी वजह से हम इस ट्रेनिंग में नहीं बैठ पाते, तो फिर हम अपना फ्यूचर डिजाइन तो नहीं कर सकते, कंप्लीटली कंट्रोल तो नहीं कर सकते। कुछ भी सिचुएशन में ऐसा क्रिएट हो सकता है। जैसे लास्ट जब वॉर हुई है अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान की, वो 3 डेज में इंटरनेट नहीं आ रहा था लाहौर में, ठीक है, और मेरे सेशन स्केड्यूल थे। मेरा कंट्रोल किस चीज में था? सेशंस को स्केड्यूल करना, अपना टाइम उसके हिसाब से मैनेज करना। मैंने वो किया, और जब मैं वहां पे बैठी हूँ सेशन लेने के लिए, तो इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। एंड दिस इज समथिंग जो मेरे कंट्रोल में नहीं था। तो मेरा जो उस टाइम सिचुएशन हो गई थी, वो मैंने तो अपने पूरे एक्शंस किए हुए थे। तो हम लोग जब प्रेजेंट में होते हैं, हम फ्यूचर को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमारा कंट्रोल कहाँ पे होता है? इवेंचुअली फिर आ जाता है वापस प्रेजेंट में, कि हम प्रेजेंट में क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो हम प्रेजेंट को ही कंट्रोल कर रहे होते हैं कि आज मुझे क्या देना है, आज के दिन में मुझे अपना 100% क्या देना है। फ्यूचर तो फिर भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। कल क्या होगा वो डोंट नो। हमने आज जो सोचा हुआ है, कल उसको एग्जीक्यूट करते हुए क्या सिचुएशन क्रिएट होगी वी डोंट नो। ठीक है, ओके। सो फ्यूचर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसको आपने उस साइड पे लिख लेना, व्हाट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। इसी तरह से दूसरों की सोच, अदर्स थॉट, क्या वो हमारे कंट्रोल में होती है? नहीं होती है। इसको भी उस डायरेक्शन में लिख लें, अदर थॉट्स, अदर्स इमोशन। दूसरे क्या महसूस करते हैं, क्या वो हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। ग्रेट। अदर्स बिहेवियर, नहीं। गुड। माय बिहेवियर,
ओके, मेरा बिहेवियर कंट्रोल में, इसको आपने उस डायरेक्शन में लिख लेना है जहां पे आपने लिखा हुआ है व्हाट इज इन माय कंट्रोल, माय इमोशंस। ओके गुड, मेरे इमोशंस भी मेरे कंट्रोल में होते हैं, माय थॉट्स वो भी मेरे कंट्रोल में है। अब कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है, क्या वो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होती है? नहीं होती है। तो उस सिचुएशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या चीज हमारे कंट्रोल में होती है? How we react to that situation? Yeah, great. How you react or respond to that situation. This is something जो हम, our reaction, our response, this is something जो हमारे कंट्रोल में होता है. That's great. तो आपने what is not in my control में आपने क्या लिखना है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती. हर वो चीज जिसमें एक से दो लोग इन्वॉल्व है या नेचर इन्वॉल्व है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता. हाँ, कुछ भी हो गया है उसमें हाउ वी रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन वो हमारे कंट्रोल में होता है. सो ईशल कह रही है कि सिचुएशंस आर नॉट फुली इन आवर कंट्रोल बिकॉज दे डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स अदर पीपल. दैट्स ग्रेट, ट्रू. बट हाउ वी रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, दिस इज समथिंग जो हमारे कंट्रोल में होता है और ये आपने उसमें लिख लेना है. ओके, सो सबकी लिस्ट कंप्लीट हो गई है. गुड. Consequences are not in our control. Yeah, good. Consequences again, ये future consequences को अगर हम precisely बोलें तो वो future में आ जाता है ना. मैं अभी क्या कर रही हूँ उसका consequence क्या होगा वो future है, which is not in our control. ठीक है. So ये list हम लोगों ने develop कर ली है. अब इसके ऊपर ना एक बड़ा सा करके आप लोगों ने लिख लेना directions. और ये वो डायरेक्शन है जिसको आज से आपने कॉन्शियसली यूज करना है कि आप किस डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं. लेट्स सपोज महनाज, आप चैट बॉक्स में अपना जो भी आपने कहना है आप चैट बॉक्स में लिखते हैं. ओके, सो अभी ये जो डायरेक्शंस हैं ये आपकी जो थॉट्स चल रही होती हैं उनके लिए है कि हम किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं. अब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जब जब आप उस डायरेक्शन में सोचेंगे आप लूप क्रिएट करते जाएंगे. जैसे दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है और अगर मैं ये सोच रही हूँ तो मैं कभी भी उसके नतीजे पे नहीं पहुंच सकूंगी, मैं कभी भी एंड पे नहीं पहुंच सकूंगी. ठीक है. और जब तक मेरे माइंड में कंफ्यूजन रहेगी क्या होगा, मैं एक लूप में चलती जाऊंगी. इसी तरह से सिचुएशन क्रिएट हुई है, कोई भी सिचुएशन है और उस सिचुएशन के बारे में मैं सोचती जा रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ. मैं सिर्फ क्या सोच रही हूँ, सिचुएशन के बारे में सोच रही हूँ जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है. तो जब जब हम सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बिहेवियर के बारे में सोचते हैं, दूसरों के इमोशंस के बारे में सोचते हैं, दूसरों के थॉट्स के बारे में सोचते हैं या फिर फ्यूचर और पास्ट के बारे में, तो दीज आर द थिंग जिनके बारे में सोचते हुए हम ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे होते हैं. और अगर हम व्हाट इज इन माय कंट्रोल उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, जैसे प्रेजेंट में मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे आई थिंक महनाज ने शेयर किया था कि हम पास्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट में हमने पास्ट के बारे में कैसे सोचना है हम उसको डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, वो आ गया प्रेजेंट. अब लेट्स सपोज मैं पास्ट को कैसे प्रेजेंट में परसीव कर रही हूँ, उससे क्या लर्न कर रही हूँ. अगर मैंने वो सोचना शुरू कर दिया है, उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया है, तो क्या होगा, वो मेरे लिए हेल्पफुल बन जाएगा, वो मेरे लिए एक लर्निंग बन जाएगी, वो मेरे लिए ग्रोथ का जरिया बन जाएगा और मैं प्रोडक्टिव हो जाऊंगी. किसी ने कमेंट्स में इसमें चैट बॉक्स में पूछा हुआ था कि क्या ओवर थिंकिंग को प्रोडक्टिव हम बना सकते हैं, तो यस, हम डेफिनेटली बना सकते हैं और हम उसी के लिए यहाँ पे हैं. और वो कैसे बना सकते हैं, उसका पाथवे ये है कि आपके कंट्रोल में क्या नहीं है, आपने उस डायरेक्शन में नहीं सोचना होता. आपकी एक एक थॉट जो है आपने उसको आइडेंटिफाई करना है और देन आपने उसको शिफ्ट करना होता है टुवर्ड्स प्रेजेंट, टुवर्ड्स व्हाट आई कैन डू इन दिस सिचुएशन, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन. आपकी थॉट्स किस तरह से चल रही हैं, मैं दूसरों के बारे में सोच रही हूँ या मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकती हूँ, मैं पास्ट के बारे में सोच रही हूँ या ये मैं सोच रही हूँ कि प्रेजेंट में मैं उस पास्ट से क्या लर्न करके अपने अंदर इम्प्रूव कर सकती हूँ. तो जब जब आप अपनी थॉट्स को शिफ्ट करके ले आते हैं इन द प्रेजेंट, तो वो आपके लिए प्रोडक्टिव बनना शुरू हो जाती है, वो आपके लिए एक पाथवे बन जाता है टुवर्ड्स ग्रोथ एंड टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट. ठीक है. इसके अलावा जो थॉट पैटर्न्स, जैसे हमने हेल्दी थॉट पैटर्न्स और अनहेल्दी थॉट पैटर्न्स की बात की है,
सो हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है वो हमारे कंट्रोल में क्या होता है उसकी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। जैसे हमने स्टार्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, तो जो हमारे कंट्रोल में होता है हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसके साथ में एक्सेप्टेंस, हेल्दी जो थॉट पैटर्न्स होते हैं वो एक्सेप्टेंस से जनरेट हो रहे होते हैं, जो जिससे हम प्रेजेंट में रहने में जिससे हमें हेल्प मिल सकती है। जैसे जो हमने कहा कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बट हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, दिस इज समथिंग जो हमारे कंट्रोल में होता है। ये चीज क्रिएट कैसे होती है? थ्रू एक्सेप्टेंस। जैसे अभी किसी ने भी वीडियो ऑन नहीं की हुई एक्सेप्ट 1-2 पीपल्स, जबकि मैंने आज से पहले ऐसे कभी ट्रेनिंग नहीं दी है कि कोई भी वीडियो ऑन करके नहीं बैठा हुआ और मैं ट्रेनिंग डिलीवर कर रही हूँ। आई डोंट लाइक इट एंड आई डोंट डू इट नॉर्मली। आज फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और अभी मेरे प्लान ये चल रहा है कि नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब अगर यहाँ पे मैं जजमेंट क्रिएट करती हूँ, जो कि अनहेल्दी थॉट पैटर्न में सबसे ऊपर लिखा हुआ है, जजमेंट। तो जजमेंट क्या हो सकती है? जजमेंट मेरे बारे में भी हो सकती है। जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे कोई सीरियस नहीं ले रहा, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा बिकॉज वीडियो ऑन नहीं कर रही। तो किसी भी सिचुएशन को अगर मैं किसी भी जजमेंट में डाल देती हूँ, चाहे वो टुवर्ड्स माई सेल्फ हो या टुवर्ड्स योर सेल्फ हो, आपके बारे में सोचने लग जाती हूँ कि यू आर नॉट प्रेजेंट देयर, आपने बस ज्वाइन किया हुआ है लेकिन आप लोग अटेंड नहीं कर रहे। सो जजमेंट क्रिएट कर रही हूँ मैं। तो अगर मैं जजमेंट क्रिएट करूंगी तो क्या होगा? मैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को हिंडर करना, मैं जिस पर्पस के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ उसको मैं हिंडर करना स्टार्ट हो जाऊंगी। सो हेल्दी पैटर्न क्या होता है? टू एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस में कोई भी अजम्पशन नहीं होती। अब ये जितनी स्टेटमेंट्स मैंने भी जजमेंट वाली बोली थी उसमें अजम्पशंस थी, जो कि अनहेल्दी पैटर्न का पार्ट होता है। अज्यूम कर रही हूँ मैं, या फिर मैं रीजन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि इन्होंने क्यों वीडियो ऑन नहीं किया है, क्यों का वर्ड। तो ये 3 चीजें अगर आप अपनी थॉट्स में आइडेंटिफाई कर लें, यू विल अंडरस्टैंड क्विकली कि आप अनहेल्दी पैटर्न की तरफ जा रहे हैं। अजम्पशंस, रीजंस एंड जजमेंट, दीज 3 थिंग्स। सो जजमेंट क्रिएट ही तब होती है जब आप अज्यूम कर रहे होते हैं या फिर आप रीजन दे रहे होते हैं। और इट डजेंट मैटर अब वो आप अपने बारे में करें या दूसरों के बारे में करें, जब भी आप जजमेंट क्रिएट करेंगे आप अनहेल्दी पैटर्न पे होंगे। ऑन दी अदर हैंड एक्सेप्टेंस आपको कैसे हेल्प करती है? सो एक्सेप्टेंस क्या है? किसी ने भी वीडियो ऑन नहीं की हुई एक्सेप्ट 1 or 2 पीपल, राइट? अब इसके आगे कुछ भी नहीं है जो मुझे एक्यूरेटली पता है। मैं जो भी सोचूंगी वो मेरी अजम्पशन है। कोई एक इंसान आके मुझे बोल भी देता है मैंने इस वजह से नहीं किया, तो बाकी 10 लोगों पे वो अप्लाई नहीं होता। सो अगर मैं इससे आगे नहीं सोचती, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग जो मुझे हेल्प कर सकता है इन एनी वे, कि मैं ये समझना शुरू कर दूं क्यों वीडियो ऑन नहीं है, या फिर मुझे इस बारे में क्या महसूस होता है। इन दोनों चीजों के बारे में मैं जितना भी सोचूंगी वो मुझे इस सेशन में जो मेरा अभी पर्पस है वो हेल्प नहीं कर सकता। सो एक्सेप्टेंस जो है वो आपको हेल्प करती है टू डिजाइन योर रिस्पॉन्स, हाउ यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। और उसमें आपके पास हमेशा चॉइसेस होती हैं, ऐसा नहीं है कि चॉइसेस नहीं होती हैं। जैसे जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जो व्हेन आई गिव योर टाइम कि 3:15 तक सबकी वीडियोस ऑन होनी चाहिए, सो मैंने 3:15 तक देखा किसी की ऑन नहीं हुई, तो मेरे पास चॉइस थी कि सबको रिमूव कर सकती हूँ सेशन से। मेरे पास चॉइस थी कि ओके मैं इसी तरह कंटिन्यू कर लेती हूँ सेशन को। और तीसरी मेरे पास चॉइस है कि नेक्स्ट टाइम ये चीज मैं पहले से डिफाइन कर दूंगी और पहले से जो जिनके साथ भी मैं जो भी होस्ट होंगी या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम कर रही हूँ उनको पहले से इन्फॉर्म कर दूंगी कि अगर ऐसा होगा तो मैं सेशन कंटिन्यू नहीं करूंगी। सो दीज 3 चॉइसेस आर देयर, जिसमें से मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा चॉइस जो है उसको मैं कंटिन्यू करूं। और जब भी बीइंग अ ह्यूमन हमारे पास चॉइसेस होती हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? वी फील एम्पावर्ड, राइट? आपके सामने कपड़े रखे जाएं और आपको कहा जाए 3 में से एक उठा लो, यू फील गुड अबाउट इट। और एक सूट रख दिया जाए कि बस यही पहनना है, तो आपको वो बुरा लगता है। सो बीइंग अ ह्यूमन हमें चॉइसेस अच्छी लगती हैं। तो जब हम एक्सेप्टेंस पे होते हैं तो हमारे पास चॉइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, और वो चॉइसेस इंक्रीज होना हमें एवरीडे लाइफ में एम्पावर्ड फील करवाता है। और जब हम एम्पावर्ड फील करते हैं हम अपनी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करने की तरफ जाते हैं, हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, जब भी हम सोल्यूशन फोकस्ड होते हैं, ठीक है, अभी जैसे ये मैंने पूरा एक्सेप्टेंस वाला जो एक्सप्लेन किया है इसमें कंप्लीटली सोल्यूशन था, मैं क्या कर सकती हूँ, हाउ
आई नीड टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, मेरे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, दिस आर द सॉल्यूशंस, तो मैं कॉन्टिन्यूसली सोल्यूशन फोकस्ड हूँ। ऑन द अदर हैंड जब आप अनहेल्दी पैटर्न पे होते हैं, आप क्या कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम फोकस्ड, ये क्यों हुआ, इसलिए हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ये हुआ होगा, सो कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम फोकस्ड। और जब भी आप प्रॉब्लम फोकस्ड होते हैं, आप कभी भी सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते हैं, आप एक्शन परफॉर्म ही नहीं कर सकते हैं, दैट्स हाउ ब्रेन वर्क्स, राइट। सो आप जब भी सोल्यूशन फोकस्ड होंगे, इवेंचुअली आप एक्शंस डिजाइन करना स्टार्ट कर देंगे, और जब जब आप अपने माइंड में एक्शंस को डिजाइन कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी एक्शन परफॉर्म करने के लिए रेडी होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट माइंड बॉडी कनेक्शन। हम जैसा सोचते हैं वैसे बिहेवियर्स होते हैं, तो अगर हम प्रॉब्लम को सोच रहे हैं तो एक्शंस कभी भी नहीं आएंगे। दिस इज ऑल्सो समथिंग जो किसी ने चैट बॉक्स में पूछा हुआ था, बल्कि कहा हुआ था कि ओवर थिंकिंग तब बुरी होती है जब मैं एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता। सो नेक्स्ट है, जब भी हम हेल्दी थॉट पैटर्न पे होते हैं, हम रिजल्ट फोकस होते हैं, मुझे चाहिए क्या, जैसे राइट नाउ मुझे क्या चाहिए था, आई नीड टू डिलीवर द ट्रेनिंग, मेरा पर्पस क्या है, टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, मेरा पर्पस क्या है, आपको ओवर थिंकिंग का लूप समझाना और आपको उस चीज से बाहर निकालना, ठीक है। सो अगर मैं इस पर्पस पे फोकस्ड हूँ, सेकंड जो मेरा पर्पस है वो क्या है, मैं जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस टाइम पे काम कर रही हूँ, मुझे उस काम को कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो जब मैं इस रिजल्ट पे फोकस्ड हूँ, उसने मेरी चॉइस को इन्फ्लुएंस किया है, और उस रिजल्ट फोकस की वजह से मैं ये कर पाई हूँ कि मैं इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर पाऊँ, ठीक है। सो जब जब हम रिजल्ट फोकस्ड होते हैं, हमारे एक्शन अकॉर्डिंगली डिजाइन होते हैं और हम अपनी चीजों को अकॉर्डिंगली डिलीवर कर पाते हैं। सो लाइफ पे हमारा पूरा कंट्रोल आ जाता है। और ये सब कैसे होता है, ये सिर्फ आपने 3 चीजों का, बल्कि एक चीज का भी ध्यान रख लेना, जजमेंट और एक्सेप्टेंस। जब जब आप जजमेंट पे होंगे, यू आर ऑन अनहेल्दी पैटर्न, और जब जब अनहेल्दी पैटर्न पे होंगे, आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ इस एक चीज को आप फर्स्ट लेवल पे आइडेंटिफाई करें कि एम आई जजिंग समथिंग और एक्सेप्टिंग समथिंग। तो अगर इस एक चीज को भी आप कर पाए ना, तो आपकी ओवर थिंकिंग आप देखेंगे कि कितनी जल्दी डिक्रीज होना स्टार्ट करती है। सो वो अभी जो आपने बोला था ना कि 8% है, 5% है, 10% है, आज से नेक्स्ट 15 डेज तक आपने ये सारी चीजों को फॉलो करना है, और उसके बाद आफ्टर 15 डेज यू कैन कम बैक टू मी एंड गिव मी फीडबैक कि अभी आपकी कितनी रिड्यूस हो गई है, कितने % रिड्यूस हो गई, ठीक है। सो अभी मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करती हूँ कि हम एक्चुअल में ये करते कैसे हैं। अभी आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, सबको नजर आ रही है? ओके, जस्ट इमेजिन कि ये आपकी थॉट्स चल रही हैं, आपके माइंड में थॉट पैटर्न्स हैं। सो फिदा हुसैन, आपको कुछ कहना है? यू रेज योर हैंड, या फिर आपने बताया कि नजर आ रही हैं? ओके ओके, सो आपने मुझे आइडेंटिफाई करके बताना है कि आपको क्या लगता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हेल्दी थॉट पैटर्न है या अनहेल्दी थॉट पैटर्न है। The statement is, I am fat because I have a slow metabolism. There's nothing I can do about it. Unhealthy because of actions. Okay. Great, unhealthy. Wow. So you started. इसी तरह से आपने अपनी thoughts को identify करना है. Unhealthy thought pattern. Great. So next one is, many people don't want employer of my age, but I will find exception to the rule. It's healthy. Toha कह रहे हैं it's healthy. Great, good. I think it's acceptance and it's healthy. Yes, great. Thank you for sharing, Iman, and thank you everybody for participating. Okay, so the third one is, my metabolism is slow, but I can change it through exercise. This is also healthy. Okay, that's great. So सब intelligent लोग हैं जिन्होंने फौरन से grasp भी कर लिए and they start identifying as well. That's great. So अभी आपने इसी तरह से अपनी thoughts को identify करना है और shift करना है. Now let me share one more thing. अगर आप देखें, first वाली जो thought है और जो लास्ट वाली, फर्स्ट जो एग्जाम्पल मैंने मेंशन की है और जो लास्ट एग्जाम्पल मेंशन की हुई है, आई एम फैट बिकॉज आई हैव अ स्लो मेटाबॉलिज्म, देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट, एंड द लास्ट वन इज, माय मेटाबॉलिज्म इज स्लो बट आई कैन चेंज इट थ्रू एक्सरसाइज। ये दोनों एक ही सिचुएशन की डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं या डिफरेंट थॉट्स कह सकते हैं। अब सिचुएशन क्या है, माय मेटाबॉलिज्म इज स्लो, दिस इज अ सिचुएशन। अब कोई एक इंसान इस सिचुएशन में क्या सोच रहा है, आई एम फैट बिकॉज आई हैव अ स्लो मेटाबॉलिज्म, देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। So first, judgment. I am fat because I have a slow metabolism. And then
देयर इज नथिंग assumption, देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट. व्हाट डू यू थिंक? जस्ट इसको फील करके देखें. अगर आप ये सोच रहे हैं, आपको अपनी लाइफ कैसी लगेगी, आपको अपना आप कैसा लगेगा, और आप जब ये सोच रहे हैं आपकी लाइफ की रियलिटी क्या क्रिएट होगी. ओके, you'll feel miserable by thinking that कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती. और जब आप ये सोच रहे हैं तो डेफिनेटली you will have poor self image, yeah, great, and you'll feel bad about your life. और किसको अच्छा लगता है? प्रॉब्लम ही कहाँ शुरू होती है? जब हम अपनी जिंदगी, हमें लाइफ बुरी लगना शुरू हो जाती है. आई विल नॉट बी कंफर्टेबल इन माई बॉडी, लो सेल्फ एस्टीम, या ग्रेट. अब सेम ही सिचुएशन है, मेटाबॉलिज्म में कुछ चेंज नहीं आया, मेटाबॉलिज्म स्लो ही है, लेकिन स्टेटमेंट क्या आ रही है, थॉट क्या जनरेट हो रही है, माई मेटाबॉलिज्म इज स्लो बट आई कैन चेंज इट थ्रू एक्सरसाइज. एक्सेप्टेंस, यहाँ पे वो जो हम कहते हैं ना पॉजिटिव सोचना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव कुछ नहीं सोचा जा रहा. पॉजिटिव क्या होता है कि मेरा मेटाबॉलिज्म तो ठीक है. हम नॉर्मली क्या करते हैं, रियलिटी को डिसमिस कर देने को हम पॉजिटिव सोचना कहते हैं. नो, पॉजिटिविटी की एक्चुअल डेफिनेशन होती है एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस में क्या है कि मेटाबॉलिज्म स्लो है तो वो है, उसको चेंज नहीं हम करें, फैक्ट को चेंज नहीं करें. सो एक्सेप्टेंस आ गया कि ओके मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है बट आई कैन चेंज it through exercise. मिशकात कह रहे हैं this is toxic positivity. Yes, this is, और 90% हमारी सोसाइटी में ये सिखाया जाता है कि this is positivity, कि अपनी जो रियल सिचुएशन है उसको डिसमिस करना शुरू कर दो और अच्छा सोचने लग जाओ, और यहाँ से भी ओवरथिंकिंग जनरेट होती है. सो टॉक्सिक पॉजिटिविटी में नहीं जाना. एक्सेप्टेंस इज रियल डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिविटी. सो यहाँ पे माई मेटाबॉलिज्म इज स्लो बट आई कैन चेंज इट थ्रू एक्सरसाइज. जैसे ही आपने ये सोचा, एक्सेप्टेंस, माई मेटाबॉलिज्म इज स्लो एंड आई कैन चेंज इट थ्रू एक्सरसाइज. नाउ जस्ट फील इट कि आपको अपनी लाइफ कैसी लगती है जब व्हेन यू स्टार्ट फाइंडिंग अ पाथवेज अबाउट योर प्रॉब्लम्स. हाउ डज दैट मेक्स यू फील? I always try to change my thoughts and my environment. Usman, environment आपके कंट्रोल में होते हैं? At peace, having a vision in control, that's great. Yumna and मिशकात कह रहे हैं more solution oriented, energetic, yes. और जब आप इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो आपको एनर्जेटिक भी फील होगा, तो और आप एक्शन भी परफॉर्म कर पाएंगे. वो जो ओवर थिंकिंग की वजह से आपका एक्शन परफॉर्म नहीं ना हो पाता, वो क्या होता है, नेगेटिव वाली जो ओवर थिंकिंग चल रही होती है इस डायरेक्शन में जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वहां से प्रोक्रेस्टिनेशन जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है. और अगर आप इस डायरेक्शन में ओवर थिंक कर रहे हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, आई कैन चेंज इट थ्रू एक्सरसाइज, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एक्सरसाइजेज कि मुझे क्या क्या एक्सरसाइजेज करनी है, और देन यू स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट एक्सरसाइजेज, या फिर यू स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट कि मेटाबॉलिज्म को और कैसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है. देन यू विल फाइंड आउट कि आप डाइट से भी इंप्रूव कर सकते हैं एक्सरसाइज के साथ. उसके अलावा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं. सो क्या हुआ, ये वाली ओवर थिंकिंग आपको प्रोडक्टिव बनाना शुरू हो गई है. ये वाली ओवर थिंकिंग क्या कर रही है, आपकी लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है. सो eventually overthinking is not a bad thing, it's a direction. So अभी overthinking को overcome नहीं करना, overthinking की direction को better करना है, sometime through self motivation. अब्दुल्ला, okay. So सबको यहाँ तक कुछ confusion तो नहीं है? No. Okay, so this is a formula for acceptance. Thank you सबका रिस्पॉन्ड करने के लिए. So this is the formula for acceptance. What happened is happened. What I need to do now. So take it as a filling the blank. What happened is happened में just write down कि क्या हुआ है. जैसे what happened is happened में क्या लिखा जाएगा, my metabolism is slow. What I need to do now. So यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, I can change it through exercise. तो जब आप इस फॉर्मूले को, किसी भी थॉट को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या होगा, आपकी ओवरथिंकिंग वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे. सो ये पूरी चीज को अगर हम प्रिसाइज करके एक फॉर्मूले में बनाते हैं तो वो ये है, व्हाट हैपेंड इज हैपेंड, व्हाट आई नीड टू डू नाउ.
दिस इज समथिंग जो कि आपको पास्ट फ्यूचर हर जगह की थॉट से निकाल के प्रेजेंट में ले आएगी. इवन फ्यूचर में मेरा क्या दिल करे, आई नीड टू बी अ सक्सेसफुल थेरेपिस्ट और द नंबर 1 थेरेपिस्ट. दिस इज समथिंग जो मेरे माइंड में जनरेट हुआ है कि आई वांट टू बिकम अ नंबर 1 थेरेपिस्ट ऑफ इन पाकिस्तान. ठीक है. सो व्हाट हैपेंड इज हैपेंड क्या है कि ये अर्ज मेरे अंदर, ये ड्रीम जो है स्टार्ट हो गया कि मुझे नंबर 1 थेरेपिस्ट बनना है. व्हाट आई नीड टू डू नाउ. सो वो जो फ्यूचर का लूप क्रिएट होता है उसको भी आप प्रेजेंट में कैसे लेके आ सकते हैं कि मेरा ये ड्रीम है कि मुझे बनना है, अब मैं उसके लिए कर क्या सकती हूँ. सो जैसे ही आपने इस फॉर्मूला में उसको डाला तो क्या होगा, आगे आप एक्शन डिजाइन करना शुरू कर देंगे. और वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, दैट्स हाउ ब्रेन वर्क्स, कि आपका फोकस जहां जाता है आपकी एनर्जी वहां जाती है. और अगर मेरा फोकस मेरे एक्शंस को प्लान करने में है तो मैं एक्शन परफॉर्म करूंगी. अगर मेरा फोकस ड्रीम में है कि मुझे नंबर 1 थेरेपिस्ट बनना है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, वो क्या थेरेपिस्ट कर रही है, मैं सबको देखना शुरू हो गई, तो मेरा फोकस कहाँ पे, जस्ट ऑब्जर्वेशन पे. तो उससे आगे एक्शन जनरेट नहीं होगा. सो एक्शन जनरेट करने के लिए वी नीड टू कम इन द प्रेजेंट and ask ourselves what I need to do now. Okay, so Shoaib Akhtar पूछ रहे हैं, if our thoughts are truly under our control, then who would ever want to disturb their own mentality with overthinking? So controlling your thought is a skill. Okay? और skill सीखने से आती है. और जब जो सीख लेते हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो स्किल सीखने के बाद कहे कि नहीं अब मैं अपने माइंड को छोड़ता हूँ और उसको मैं अपने आप को परेशान करने देता हूँ. लेकिन दिस इज अ स्किल जो कि हमें स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती है. सो वी नीड टू पुट एफर्ट टू लर्न दैट. ठीक है. अब जैसे आपको लैपटॉप ऑन करना आ गया, दिस इज अ स्किल. और आपको जब जरूरत पड़ेगी तो क्या आप बैठ के कहेंगे नहीं मुझे बेशक आता है लेकिन जितनी मर्जी जरूरत है मैं तो ऑन नहीं करूंगा? ऐसा नहीं होगा. आप उसको ऑन, जैसे ही आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको ऑन कर लेंगे बिकॉज यू नो द स्किल. ऑन दी अदर हैंड कोई बच्चा है उसको लैपटॉप ऑन ही नहीं करना आता, वो तो नहीं करेगा ना, वो कर ही नहीं सकता. और फिर हम उस बेस पे ये नहीं कह सकते कि लैपटॉप ऑन हो नहीं सकता. जिसको स्किल आती है उसको पता है कि लैपटॉप ऑन हो सकता है. जिसको नहीं आती उसकी नॉलेज और उसकी एग्जीक्यूशन की बेस पे हम नहीं कह सकते कि हो नहीं सकता. ठीक है. सो थिंकिंग इज हम समथिंग जो हमारे ही कंट्रोल में है. और कौन, हमारा दिमाग है, कौन कंट्रोल कर सकता है? सो इट्स योर हैंड. मैं आपके हाथ को, मूवमेंट को कंट्रोल कर सकती हूँ आपके हाथ की. मैं कह सकती हूँ कि शोएब का हाथ मूव करना स्टार्ट हो जाए और क्या वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं. सेम गोज विद ऑल ऑफ यू. आप में से कोई भी मेरे हाथ को कंट्रोल कर सकता है कि मैंने कैसे मूव करना है? कौन करे कंट्रोल? इट्स मी. मेरे अलावा दुनिया में कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो इसको कंट्रोल कर सकता है. और ये भी मेरा पार्ट है, ब्रेन भी मेरा ही पार्ट है, उसमें भी कंट्रोल मेरे पास है. लेकिन एक चीज होती है कि हमने इतने सालों से जो थॉट पैटर्न सीखे हुए हैं और जो हमारे पास्ट में एक्सपीरियंसेस हुए हैं उस पे हम इतना फिक्स हो चुके होते हैं कि हमें मुश्किल जरूर आएगी. बट दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्मूला. आप अपनी हर थॉट को अगले 15 दिन तक इसमें पुट करना स्टार्ट कर दें एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस. You will start seeing the difference. Okay, और यही आपका होम टास्क भी है. सबसे पहले आपने क्या करना है, थिंक अबाउट एनी इवेंट विच मेक्स यू ओवरथिंक. कोई भी चीज जो आपको ओवरथिंकिंग आपके क्रिएट करिए, कोई भी सिचुएशन, कोई भी इवेंट ऑफ योर लाइफ. इवेंट मीन्स एनी सिचुएशन, एनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ. ठीक है. कोई पिक एनीथिंग, राइट योर थॉट. उस पर्टिकुलर सिचुएशन और इवेंट के बारे में क्या थॉट है वो लिखें. उसके बाद आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ थॉट कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है. पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, अदर्स के बारे में है, अपने बारे में है, जजमेंट पे है, एक्सेप्टेंस पे है. जस्ट राइट डाउन कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है. आइडेंटिफाई हो गया. अब आइडेंटिफाई करें व्हाट आई नीड टू एक्सेप्ट इन द सिचुएशन. एक्सेप्टेंस क्या चाहिए मुझे इसमें. जैसे मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा, आई नीड टू बिकम अ नंबर 1 थेरेपिस्ट. तो एक्सेप्टेंस क्या है कि हाँ दिस इज माई ड्रीम, आई नीड टू बिकम दैट. दिस इज एक्सेप्टेंस. ऑन दी अदर हैंड हम क्या करते हैं, मैं तो नहीं बन सकती, ये कैसे मुमकिन है कि मैं बन जाऊं. दिस इज जजमेंट. ठीक है. सो व्हाट आई नीड टू एक्सेप्ट कि आई हैव दैट ड्रीम, आई हैव दैट अर्ज टू बिकम नंबर 1. तो जब मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगी देन अप्लाई दैट फॉर्मूला के एक्सेप्टेंस एंड देन व्हाट आई नीड टू डू नाउ. तो जब मैं ये एक्सेप्ट करने के बाद मैं लिखूंगी कि व्हाट आई नीड टू डू नाउ, तो मेरे पास एक फ्रेमवर्क आ जाएगा कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे ये करना, मुझे इतने
कोचिंग आवर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, इतने थेरेपी आवर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, पीएचडी करनी होगी, ये करनी होगी ना, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मैं लिस्ट डाउन कर सकती हूँ कि नंबर 1 बनने के लिए मुझे क्या करना है। तो मेरे पास जब वो फ्रेमवर्क आ गया है, तो आपको क्या लगता है कि जब हमारे पास क्लियर पाथवे होता है, क्लियर फ्रेमवर्क होता है, तो क्या हम एक्शन नहीं करते हैं? हम डेफिनेटली करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर होम टास्क जो आपने करना है, और आफ्टर 15 डेज यू कैन कम बैक टू मी एंड टेल मी कि आपका ओवरथिंकिंग कितना रिड्यूस हुआ है। ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 आपकी ओवरथिंकिंग कितनी रिड्यूस हुई है। ओके, सो अगेन अगर हम इस पूरे को सम अप करें तो क्या है कि ओवरथिंकिंग इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स जस्ट अ डायरेक्शन ऑफ थॉट्स जो कि हमने सोचना होता है कि हम किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, वो डिफाइन करते हैं कि हम कैसा फील करेंगे और हमारी रियलिटी कैसे क्रिएट होगी, ठीक है। और overthinking becomes powerful when you guide it in the right direction. So from now to onward, it's your responsibility to guide your mind, to take control of your mind, ताकि आप overthinking का victim नहीं बने, बल्कि you start taking control of your life, you start taking control of your brain, and it will help you to create your future the way you want. Anything that anyone want to ask about the whole session जो अभी तक हमने किया है? ओके, तोहा आप क्या पूछना चाह रही हैं प्लीज? जब आपने कहा कि we should not make assumptions or we should not judge someone. When we make assumptions, we can assume that you take the example of the camera, that we can assume that people are shy or if they are traveling right now. Is it assumption or it can be related to acceptance, or what? In what meaning it can be mentioned? It is an assumption. People are shy is an assumption. जितने भी लोगों ने कैमरा ऑफ किया, अगर मेरे पास टाइम और मैं एक एक इंसान से पूछना स्टार्ट कर दूं ना, तो सबका सेम आंसर नहीं होगा कि मैं शाय हूं, ठीक है। सबका सेम आंसर नहीं होगा। सो दिस इज एन असम्पशन, वन थिंग। दूसरा, हाउ डज दैट मेक्स एनी सेंस टू मी, टू माई पर्पस? मेरा पर्पस जो है उसमें ये सोचना उस डायरेक्शन में, चाहे मुझे 100% पता है, ओके लेट्स सपोज मैं किसी एक इंसान से इंटरेक्शन में हूँ और मुझे पता है कि शी इज शाय, मुझे पता है, फिर भी इन द मोमेंट अगर मुझे कोई बात अफेक्ट कर रही है, मुझे ये अफेक्ट कर रहा है कि उसने कैमरा क्यों ऑफ किया हुआ है, कैमरा ऑफ है उसका, मुझे ये अफेक्ट कर रहा है, तो ये सोचना, इस डायरेक्शन में सोचना कि वो शाय है, हाउ डज दैट हेल्पफुल फॉर मी टू अचीव द पर्पस जो मैं वहां पे अचीव करने आई हूँ? उसमें हेल्पफुल नहीं है। तो क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी उस डायरेक्शन में जा रही है जहां पे आपको कंज्यूम नहीं करनी थी। आपको कहाँ कंज्यूम करनी थी? एक्सेप्टेंस के कैमरा ऑफ है, व्हाट आई नीड टू डू नाउ, मैं अब क्या करूं। और अगर मैं वो अपनी मेंटल एनर्जी सिर्फ यहाँ कंज्यूम करती हूँ कि मुझे अभी क्या करना है, तो मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊंगी। लेकिन अगर मैं अपनी वो एनर्जी, लेट सपोज मेरे पास 10% एनर्जी है और उसमें से मैंने 2% यहाँ कंज्यूम कर दिया कि इसने कैमरा क्यों ऑफ किया हुआ, शी इज शाय, ठीक है, यहाँ पे होगी। अब वो मेरे पास 8% बची है, तो मैं 8% जितना ही इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊंगी। So if you want to become extraordinary, you need to be conscious about कि आप अपनी एनर्जी, मेंटल एनर्जी कहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। मेरा तो ये था कि जैसे आप कह रही थी कि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि वो लोग मुझे जिसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो सोचा नहीं दे रहे, और अजम्पशन आपकी नेगेटिव सोच की तरफ, लेकिन अगर पॉजिटिव अजम्पशन भी है तो भी वो गलत है। ऐसे ही आप कह रही हैं, जैसे हमने पॉजिटिव अजम्पशन जो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग बिफोर कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। पॉजिटिविटी, अगर आप जाके गूगल पे भी पॉजिटिव होने की एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो वो एक्सेप्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में आती है। तो एक्सेप्टेंस क्या है कि महनाज का कैमरा ऑफ है, दिस इज एक्सेप्टेंस। क्यों ऑफ है, कैसे ऑफ है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, चाहे मैं कितना अच्छा सोचती रहूं, हाउ डज दैट हेल्पफुल? मेरा ये सोचना ही कैसे हेल्पफुल हो सकता है उसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में। और फिर आपकी जो नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स है ना, अगर हम इसको हेल्दी समझना शुरू कर दें, ये आपके मूड पे बहुत इफेक्ट करती हैं।
लेट सपोज मैं थकी हुई हूँ और कोई कैमरा ऑफ करके बैठा हुआ है और मैं पूरे दिन से ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हूँ, तो मेरी थॉट कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, मुझे गुस्सा ही आता जाएगा, तो क्या मसला है वगैरह वगैरह कुछ भी। तो दिस इज समथिंग जो कि हमारे मूड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो अगेन हम अपना कंट्रोल छोड़ रहे हैं वहां पे। तो अगर हम इस डायरेक्शन में ही सोचना छोड़ दें, हम कहाँ पे फोकस्ड हो जाए कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम एटलीस्ट इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। सो आई टेक सो मच टाइम आयशा, हमारे पास मजीद कोई 15 मिनट्स हैं या फिर हमें अभी सेशन को कॉल ऑफ करना है यहाँ पे? ओके ओके, सो विल प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग इन लाइक 3-6 मिनट्स, और तब तक इफ यू कैन शेयर द फॉर्म लिंक, और मेडिटेशन का पार्ट जो है वो आई नीड 15 मिनट्स फॉर दैट मेडिटेशन पार्ट, इफ एनीथिंग कैन पॉसिबल। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, सो सब लोग जो हैं वो रिलैक्स होके, अच्छा ये तो सारा हो गया हम लोग जो अपने माइंड से सोच रहे होते हैं। मैम काइंडली योर शेयर योर लिंक्डइन, आई शेयर इट, और मैं अपना नंबर ड्रॉप कर देती हूँ चैट जीपीटी में, तो आप सब लोग ना मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, सब लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया था, सो मैं सबको वहां पे ऐड नहीं कर सकी हूँ। जिनका फॉर्म फिल था वो ऐड हैं ग्रुप में, सो आई ऐड ऑल ऑफ यू इन द ग्रुप। ओके, सो सब लोग रिलैक्स होके बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल। अगर कोई बैठे हुए हैं तो टेक लगा लें या जिस तरह भी आपको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन इन योर कंफर्टेबल पोजीशन। सो जैसे अभी हम लोग सारा देख रहे थे कि हम अपने माइंड की प्रोसेसिंग को कैसे ठीक कर सकते हैं टू ओवरकम ओवर थिंकिंग। दिस इज अ वन वे टू डू दैट, एंड दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू डू दैट, क्योंकि मेडिटेशन डीप ब्रीथिंग आपको एट द मोमेंट जरूर हेल्प करती है, लेकिन आपकी पैटर्न्स को डेवलप नहीं करती है, न्यू पैटर्न्स को शेप नहीं देती हैं, ब्रेन को रीवायर नहीं करती हैं, सो वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं बनता। लेकिन सो दिस इज अ वन वे। लेकिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप अपनी मेंटल एनर्जी को नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं, आप अपनी थॉट्स को नहीं शिफ्ट कर पा रहे हैं, यू कैन यूज डीप ब्रीथिंग, यू कैन यूज मेडिटेशन, जिसको हम अभी प्रैक्टिस करने लगे हैं। ठीक है, सो एवरीबॉडी इज रेडी टू स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ डीप ब्रीथिंग? Okay, that's great. So close your eyes. Take a nice deep breath first. तो डीप ब्रीथिंग का एक स्पेशल मैकेनिज्म है कि हमने नॉर्मली हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं मुंह से, मोस्टली सब लोग मुंह से ब्रीथ कर रहे होते हैं। अगर हम लोग नोटिस करें तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं उस टाइम भी हमारी ब्रीदिंग यही चल रही होती है, हम मुंह से तेज से सांस लेना शुरू कर देते हैं, या फिर हम कुछ बहुत कम लोग होंगे जो कि नाक से सांस ले रहे होते हैं। लेकिन अगर हम किसी बच्चे की ब्रीदिंग देखें, जो बच्चा पैदा होता है जिसको कोई टेंशन नहीं होती, कोई स्ट्रेस नहीं होता, तो उसकी ब्रीदिंग हमेशा इनहेल उसका नाक से होगा और देन एक्सहेल उसका जो है वो मुंह से होगा। सो जब भी हमने उस जोन में जाना है जो कि स्ट्रेस फ्री जोन हो, एक दफा हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको क्विक रीसेट देने के लिए हमें अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करना होगा। और वो हम कैसे करेंगे उसकी हम अभी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ओके, सो क्लोज योर आईज। अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, उसको आरामदेह हालत में ले आए, और अपने जिस्म में जहां कहीं पे भी खिंचाव या तनाव, स्ट्रेस महसूस हो रहा है उसको महसूस करें। उस सारे स्ट्रेस को इकट्ठा करके किसी एक जगह पे इकट्ठा कर लें, एंड जस्ट नोटिस कि वो किस जगह पे स्ट्रेस महसूस हो रहा है, किस जगह पे तनाव महसूस हो रहा है। अब अपने नाक से गहरा सांस लें और पेट में सांस को भरें। नाक से गहरा सांस लेते हुए पेट में सांस को भरें, होल्ड करें और मुंह से आहिस्ता आहिस्ता अपने सांस को बाहर निकाल दें। अपने पेट पे हाथ रख लें ताकि जब आप सांस को भरें तो आपके पेट पे महसूस हो आपको कि आप सांस को भर रहे हैं। तो अगेन नाक से लंबा गहरा सांस लें और अपने सांस को पूरे जिस्म में जाता हुआ महसूस करें, होल्ड करें और मुंह से आहिस्ता आहिस्ता सांस को बाहर निकालें। एक दफा फिर से नाक से लंबा गहरा सांस लें और अपने मुंह में, अपने पूरे जिस्म में सांस को जाता हुआ महसूस करें,
होल्ड करें फॉर 3 सेकेंड, 1 2 3 एंड रिलीज। एक्सेल, मुंह से आहिस्ता आहिस्ता सांस को बाहर निकालें और ये आपने 6 सेकेंड तक निकालना है। 1 2 3 4 5 6। इनहेल वन मोर टाइम, नाक से लंबा गहरा सांस लें और अपने पूरे जिस्म में सांस को जाता हुआ महसूस करें और तनाव को भी महसूस करें। होल्ड, मुंह से आहिस्ता आहिस्ता सांस को बाहर निकालें और अपने पूरे जिस्म से तनाव को बाहर निकलता हुआ महसूस करें। फील द रिलैक्सेशन। इनहेल अगेन, नाक से लंबा गहरा सांस लें और अपने पूरे जिस्म में सांस को जाता हुआ महसूस करें। होल्ड और मुंह से आहिस्ता आहिस्ता सांस को बाहर निकालें और अपने जिस्म से तनाव को जाता हुआ महसूस करें। फील द रिलैक्सेशन। ओके, नाउ आई वांट यू ऑल टू ब्रिंग द माइंड समवन। अपने दिमाग में किसी के बारे में सोचें जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मे बी अ फैमिली मेंबर, अ फ्रेंड, अ लवर और अ पेट। See this person in front of you, and as you do, feel your heart area filled with that love. आपके हार्ट एरिया में वो पूरा लव जो है वो भरा जा रहा है। प्यार की वो फीलिंग आपके पूरे दिल को कवर किए हुए है। Feel that love in your heart. And now give this love to a color. कोई कलर असाइन कर दें उस प्यार को। The color would be blue, pink, white, or choose any color that you want. And now see your heart filled and surrounded by the light of that color which you assign to that feeling of love. Now take a nice deep breath. Again, inhale, and as you exhale, imagine the light of love expanded from your heart area to fill your entire body. And you are now surrounded by this light. And whatever color you choose that represent love. Great. Now take another deep breath. Inhale, and as you exhale, feel this light move out from beyond to fill the entire room that you currently in. And as this light expand to fill the room, imagine this feeling of love emanating from you to all life in the room, in the all the persons, decoration pieces, plants, filled with that light of love. Now take a nice deep breath, and as you exhale, imagine the light expand further. Imagine this light filling the entire building, covering every creature living there with this feeling of love. Now take a nice deep breath, and as you exhale, imagine the love emanating further to cover the entire city that you are in. You may feel the sense of city, or see this light, or see this city as if you are looking at on the map. See the city covering in the light of love, compassion, and peace. You may even repeat a blessing to every living creature in the city, such as you may free from suffering. Yeah. You may live with ease, with peace. And now take a nice deep breath, and as you exhale, feel this light fill the entire country that you are in. And you may see the country as if you are looking at it on a map, or you may feel a sensation of a country, such as flag or some symbol. See this cover in the light of your love. Imagine that you emanating that love to every human being, every animal, every plant of your country. And now take another deep breath, the deep one. And as you exhale, see the planet Earth. See your nation on a giant globe with all the other countries of planet Earth, and see the entire Earth covered with the light of your love. And give a blessing to all life on planet Earth.
And now I want you to bring your mind three things that you're grateful for in your personal life in the past days, past week, or past month. Think three things that you are grateful for. And as you reflect on these things, focus on emotion. Bring back to mind the emotion of joy, the feeling of love you felt with each of this moment of time. You may feel gratitude for kind word that your friends sent to you, or the gift that you receive, or any situation which you are grateful for in your life. Don't just make a list, feel the emotion associated with each thing. And now think about your work, your career, your life, and think about three things you are grateful for in your work and your career for the past 24 hours or week or month. It could be something to do with your coworker, it could be something, a project maybe, or something that happens in your office or your workplace, or whatever moment in time you are appreciating. Just feel those feelings and emotions. Good. Now think about three aspects of your living, three aspects of your being. It could be related to your body, it could be related to your mind, it could be related to your soul you are grateful for. Just think about three things that you are grateful for related to you. It could be quality about you or your characteristics. Now, give thanks and gratitude to those three aspects of yourself. Feel the joy and the positive emotions as you bring back to mind each unique aspect of yourself. Take a nice deep breath, and as you exhale, give gratitude to all these things that are part of you, and you are grateful about those things. Now, take a nice deep breath, and as you exhale, just bring to mind the vision of your dreams for your life 3 years ahead, after 3 years. And remember, we often overestimate what we can do in 1 year and underestimate what we can do in 3 years. So take your time and visualize your life after 3 years. What do you see? What do you hear? And what do you smell? What do you feel? Look for the color and exaggerate the color. Highlight the color that you are seeing. Great. And if your sense of vision is not your dominant sense, don't worry, simply focus on other senses, focus on feeling, focus on hearing what you can feel, what you can hear, and focus on the goals as it already happened. Focus on your goals, it already happened, already happening. Now, as you see this goal unfolding, bring back mind the feelings and emotions that you are associated with this goal. What do you feel? How does it make you feel? Remember to bring all the five senses. What did you see? What did you hear? What did you smell and touch and taste? And focus on the color. See the vibrant color associated with your goal. And bring the mind feeling
associated with your goals? What emotion do you feel knowing this goal is already happened? Focus on the feeling. See the color, focus on the feeling. You are now well prepared to achieve all your goals. Bring your future vision in your mind. You are now see today unfold beautifully for you. You will see tomorrow morning unfold beautifully for you. You will see tomorrow whole day unfold beautifully for you. Think of your days of series and stages and see each stage of your life, each day of your life unfolding beautifully for you with perfect intentions. Will start with your morning. Just after you are done and completing your meditation, set your intention how you want your morning, your next day to unfold, your evening to unfold. Good. Set your intention and prepare for your evening tasks. Good. And take a nice deep breath. Inhale. And as you exhale, see your dinner time going beautifully. You are smiling. You are deeply connected with yourself. You are deeply connected with the people around you. You are deeply connected with the work you want to do. Good. Now see your morning unfold beautifully. You are preparing for the work with all the passion, with all the energy you want, and you are working towards your goals. You are working to achieve whatever you want to achieve in your life. Good. Now take a nice deep breath, and as you exhale, you may bring to mind the specific event or meeting in your mind that happened in your life and set an intention for each event, for each task that you want to do. It will be peaceful, wonderful, and exciting. As your day wrap up, see yourself returning to bed filled with peace, laughter, joy, relaxation, and happiness. You may see yourself in deep connection with yourself and with divine nature. See yourself with you with a deep connection and with divine nature, and ask for blessing from the higher power. Ask for blessing from the higher power you believe in, and bless yourself as well. Good. So blessing is form of prayer, form of closure, form of peace. And now you are done with the blessing. And now I'm going to count from 1 to 5. And when I reach the count of 5, feeling wonderful, healthy, and feeling better than before, you can come back into the present when I count till the 5. Okay? So now get ready to come back into the present while feeling wonderful, while feeling peaceful, feeling better than before. 1, 2, 3. Get ready to open your eyes at the count of 4, 5. Feeling wonderful, perfect, healthy, and feeling better than before. So you can open your eyes and come back to now. Take a nice deep breath and have a wonderful day ahead. So, everybody can share your feedback in the form that maybe, okay, I'll just share the form.
in the chat box. Thank you so much for joining, all of you, and be present in the workshop and making an effort. So मैंने chat में form जो है वो कर दिया है. We pin the form. Yes. And related to workshop, if you want to ask anything, you can ask right now and you can ask via message. मैंने अपना नंबर भी पिन कर दिया है जिस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. सो आई कैन ऐड यू इन द ग्रुप. और जो है लिंक्डइन का लिंक अभी मेरे पास नहीं है. आई कैन शेयर इट विया व्हाट्सएप. तो अगर आयशा आपके पास है तो प्लीज यू कैन शेयर.